کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گورنر ستیہ ملک نے ریاست کے عوام سے خوف زدہ نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ نے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی بھی لوگوں سے درخواست کی ہے۔ گورنر نے ریاست کے موجودہ حالات، خاص کر حالیہ پلوامہ حملہ اور اس کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی انتظامی کونسل کی ایک میٹنگ منعقد کی۔ سرکاری ترجمان کے مطابق وادی میں اضافی فورسز کی تعیناتی عام انتخابات کے پیش نظر کی گئی ہے۔ اس تعلق سے پھیلائی جا رہی کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دینے کی اپیل کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ افواہوں سے لوگوں میں خوف پایا جا رہا ہے اور معمول کی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ صرف پلوامہ حملے کے تناظر میں ہے۔ وادی میں ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت پر گورنر کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں شاہراہ بلاک رہنے سے یہ بحران پیدا ہوا ہے اور اس میں نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ خدمات متاثر رہنے سے بھی ادویات کی سپلائی میں کمی آئی ہے۔ ریاستی حکومت کے ترجمان روہت کنسل نے اس سلسلے میں جموں میں ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کی۔ ابھی ریسنٹلی پنچایت الیکشنز ہوئی، پنچایت الیکشنز 13 فیز میں ہوئی۔ 13 فیز میں ہونے کے باوجود وہاں پہ there was a huge requirement of security forces, companies, and those security forces were provided. جنرل الیکشنز کے لیے ظاہر ہے کہ زیادہ کمپنیز کی ضرورت ہے، زیادہ فورسز کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے پاس اویلیبل فورس ہے اس کو سپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے. So this has to be looked at in that context, and this is precisely what we have clarified here. So there is no room for reading any other meaning in this. The induction of the companies that has been mentioned should be just looked at in the context of the preparation of the elections, and as I said, there is a requirement of forces that is being supplemented, no more, no less. ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں دفعہ 35 سے معاملے پر موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ سرکاری ترجمان روہت کنسل نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اس معاملے پر سماعت کو ملتوی کرنے کی پہلے ہی عدالت سے گزارش کی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس تعلق سے پھیلائی جا رہی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے تو گورنمنٹ کی فیبروری 11 کی لیٹر ہے which all of you are aware of, where it has already asked for adjournment of the proceedings. So the government stand remains that. اس موقع پر سرکاری ترجمان نے کہا کہ ملک کے مختلف مقامات پر مقیم کشمیری طلباء اور تاجرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ There were reports of alleged harassment of residents and students. There have been reports of chats, messages, allegations regarding targeting of students, traders, and also some complaints about some residents or students being asked to vacate their rented accommodation. And all this has led to a lot of sense of fear and insecurity. On behalf of the government, I wish to emphatically state that the state government has been taking all necessary steps to ensure the safety and security of the residents of the state, especially students studying in all parts of the country. And the state government shall proactively continue to do so. بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کا کہنا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور بی جے پی حکومت دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ بی جے پی صدر نے آج جموں میں وجے سنکلپ ریلی سے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ پیشے کی رپورٹ۔ جموں میں منعقدہ بی جے پی کی وجے سنکلپ ریلی میں پارٹی کے قومی صدر امت شاہ کا خطاب سننے کے لیے بڑی تعداد میں بی جے پی کارکنان جمع ہوئے تھے۔ اس ریلی میں رام لال، ڈاکٹر جتیندر سنگھ سمیت بی جے پی کے کئی سینئر لیڈرز موجود تھے۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے اپنے خطاب میں حالیہ پلوامہ حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی اور فورسز اس کا بدلہ ضرور لیں گی۔ امت شاہ نے ریاست جموں کشمیر سے دہشت گردی کے خاتمے کے مودی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ بی جے پی صدر نے کہا کہ مودی حکومت پاکستان کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر الگ تھلگ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے سत्ता میں آنے کے بعد آتنکوادی گتیویدھیوں سے ذرا بھی سمادھان نہیں کیا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کام ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کی نریندر مودی سرکار۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار
आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा। पाकिस्तान को विश्व के अंदर अलग थलग करने की बात हो, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए कभी पीछे नहीं। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी हुकूमत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राहों पर गामजन हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो रियासत की तरक्की और खुशहाली के जामिन हैं। अमित शाह ने रियासत की अपोजिशन पार्टियों पर नुक्ताचीनी करते हुए उन पर खानदानी सियासत को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी सदर ने कहा कि इन्हीं पार्टियों की वजह से जम्मू कश्मीर तरक्की के समरात से महरूम रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। फारूक साहब, हम तो यही रहते हैं, लंदन में वैकेशन करने के लिए नहीं जाते हैं। ये जो हमारा हिसाब मांगते हैं, घाटी के युवाओं को जो भड़काते हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, मैं घाटी के युवाओं को पूछना चाहता हूं, तनिक जांच करो, इनके बेटे कहां पढ़ते हैं? अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं। ये किसके पैसे से पढ़ते हैं? ये जम्मू और कश्मीर की जनता के पैसे से। ये भ्रष्टाचार जो पीडीपी परिवार, जो एनसी परिवार ने किया है, उसने जम्मू कश्मीर के विकास को रोका है। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी नाम का चौकीदार आया, पाई पाई जम्मू कश्मीर की जनता को। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को मुल्क से बेदखल करने की वकालत की। बीजेपी सदर ने कौमी सतह पर अपोजिशन पार्टियों के अजीम इत्तेहाद को मुल्क की सलामती के लिए खतरा बताया। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। मैं तो पूछ कर सकता है कि भाई ये गठबंधन का नेता कौन इस देश का प्रधानमंत्री? इसका कोई नेता नहीं है जिसका ना नीति है ना सिद्धांत है। वो गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता। ये गठबंधन नहीं है, मिलावट करने वालों का टोला जमा है, परिवारवाद वालों का टोला जमा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिनके लिए भारत माता के अलावे, भारत की इस भूमि के अलावे कोई चिंता नहीं है। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ने आज जम्मू की धरती से 2019 के होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया। अपनी तकरीर में हालांकि उन्होंने सभी चीज़ों को टच किया, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है 35A, उस पर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। जाहिर तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट इस मुद्दे पर अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का बंद रहना अब एक मामूल बन चुका है। दरमानदा मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला रामबन में आवाम हर वक्त मुसाफिरों की मदद के लिए पेश रहते हैं। पेश रामबन से बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के सिलसिले में जिला रामबन के अंदर जारी तामीराती काम एक बड़ा मसला बन चुका है। रामबन बानेहाल सेक्टर में तामीराती कंपनी की जानिब से बिना किसी प्लानिंग की बेजा कटाई ने सड़क को काफी खस्ता हाल बना दिया है। मिट्टी के तोदे गिरने और शाहराह का बंद होना अब मामूल बन चुका है। आए रोज हजारों मुसाफिर शाहराह पर दरमानदा रहते हैं। इन मुसाफिरों की मदद के लिए जिला रामबन के लोग हमेशा पेश रहते हैं। हालिया दिनों शाहराह बंद होने के बाद चंद्रकोट, रामबन, पंठियाल, मगरकोट, रामसू और बानीहाल के लोगों ने दरमानदा अफराद को घरों में मेहमानों की तरह रखा। तमाम मसाजिद, मदरसे, गुरुद्वारे, मंदिर और कम्युनिटी हॉलों में भी दरमानदा मुसाफिरों के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। मुफ्त रिहाइश, खाने और तिब्बी सहूलियात का इंतजाम किया गया। दरमानदा अफराद ने जिले के लोगों का शुक्रिया अदा किया। हम तो बिल्कुल यहाँ से समझो कि मरने के करीब थे। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं या कोई बीमार पेशेंट है, तो इन्होंने फिर हमें यहाँ बुलाया। यहाँ पर इन्होंने बहुत सेवा किया, हमको बिस्तर दिया, हमको किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको दिया। यहाँ पर हीटर लगाया
اور کملے وملے تھی کھانا کھلایا چائے پلایا واریاہ اصل کھو چو تہ اصل پٲٹھۍ آرام تہ کوٚر اصل پٲٹھۍ چھِ کران لاکھ لاکھ شکر کہ یم ادارٕ خٲطرٕ یمو کوٚر اَسہِ یوٗت انتظام کوٚر یمو یوٗت ییٖتِس پبلکس خٲطرٕ. سبھی نے بہت ہیلپ کیا یہاں کے لوگوں. ہم کو محسوس ہی نہیں ہوا ہے کہ ہم راستے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسا انتظام انہوں نے یہاں کیا ہے. یہاں کے جو نوجوان ہیں, یہاں کے بزرگ, سبھی نے ہمیں مدد کیا ہے. رامبن کے تمام مکتب فکر کے لوگوں اور رضاکاروں نے مشکل حالات میں انسانیت کے جذبے کے تحت نہ صرف مسافروں کی مدد کی ہے بلکہ حادثات کی صورت میں راحت اور بچاؤ کارروائی میں بھی بھرپور تعاون دیا ہے. ہمارے نوجوان علماء کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ کے اور مسافرین کی خدمت کرتے رہے, لیکن اس مرتبہ کچھ زیادہ تعداد میں مسافر درماندہ ہوئے. ہم نے صرف انسانیت کی خیر خواہی کی بنیاد پر بغیر کسی تفرقے کے, بغیر کسی مذہبی امتیاز کے ان سب کی خدمت کو اپنا بنیادی حق تصور کرتے ہوئے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے, ملی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے. ہم جو ہے اس میں مسلمان یا ہندو, سکھ, عیسائی کے کوئی تفرقہ نہیں کرتے ہیں بلکہ سب کو دعوت دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کل جو ہے مسجد سے اعلانات کیے گئے کہ گھروں میں انہیں جگہ دیجیے, ہم نے گھروں میں جگہ دی ہے. حالیہ دنوں ضلع کے نوجوانوں نے بڑی محنت کر کے درماندہ افراد کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کا کام انجام دیا. مختلف کمیٹیوں کے ذمہ داروں کی نگرانی میں نوجوانوں نے قابل ستائش کام انجام دیا. انسانیت کو بچانا جو ہے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے, تو الحمدللہ ہم آئندہ بھی یہ جذبہ جو ہے آئندہ بھی اسی طرح سے انشاءاللہ رکھیں گے اور آئندہ بھی ہم خدمت کرنا جو ہے یہ اپنا فخر سمجھیں گے. جو حت المقدور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی خدمت انجام دیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا. اور آئندہ جو نوجوانوں کو ہم یہ درس دینا چاہتے ہیں, یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر ہر وقت کھڑا رہیں. ضلع رامبن کے غیور عوام نے انسانیت کی مثال پیش کر کے نفرت پھیلانے والوں کو واضح پیغام بھی دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرتوں کی دیواروں کو ہٹا کر انسانیت کے پیغام کو عام کیا جائے. نیوز 18 اردو کے لیے بلال بالی کی رپورٹ. ضلع کپواڑہ کے کانٹھپورہ لولاب میں لوگوں کو کئی مشکلات درپیش ہیں. علاقے میں پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا ہے. اگرچہ JKPCC کی جانب سے نئے پل کی تعمیر کا کام شروع تو کیا گیا, لیکن تعمیراتی کام میں سست رفتاری کی وجہ سے کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ پل نامکمل ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صرف پل کی تعمیر کے نام پر رقومات مرحلہ وار طریقے سے نکال رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایک پگڈنڈی پر سے گزر کر نالے کو پار کرنا پڑتا ہے, اس کے باعث انہیں ہر وقت حادثات کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اتنا ہی نہیں, برفباری کے بعد اس علاقے کی سڑک رابطے بھی ابھی تک بند پڑے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ R&B نے ابھی تک سڑکوں کو قابل آمد رفت نہیں بنایا ہے. لوگوں نے انتظامیہ سے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے. بہت پریشانی ہے, بہت مشکلات ہیں. یہاں نالے لولاب گزرتا ہے بیچوں بیچ, ہم ایک سائڈ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمیں پار کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے. گورنمنٹ سرکار نے یہاں پل بنایا ہے, بہت سالوں سے کام چلتا ہے. ہماری مشکلات مد نظر رکھ کر اس پل کو بہت جلدی سے کام ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ برف باری ہوتی ہے, بارش آتی ہے, یہاں سے یہ جو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے, تو 15-20 دن ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو مارکس ہوتے ہیں, ہماری پرسنٹیج وہ بھی کم ہوتی ہے. اس گئی پتم 15 ؤری وچھان, اس سن کہاں سلوک یوان رُت کرنا. اگر بچہ سوزوک سکول دۄہس چھِ روزان پریشانی, بچہ واتیا گھر نہ واتیا گھر. ات مجھ گژھان یور اگر کانٛہہ ای تہِ رشتہٕ منگنہِ تم پھیران اپاری واپس, اپار کانٹ پاری, یپار کانٹ پار کورن پرسان کھانا, کٹن پرسان کھانا. یل قدلے اس کس پرس. مگر ازک بچہ ہکان جناب ہکان, مطلب یہ اگر معمولی آب آسہ تم ہکان ترت پرون بزرگ مطلب تم سمبھ لاگان فی ورس لاگان. آج گئی 20 ؤری سم لاگان پہ دریاو شوا, یہ سم نوان تمہ سات تلت پتہ پیوان نو ارینج کرن. ؤری آسان شین کم پہن, مگر یہ شین پیومت واریاہ. بچہ سکول گھن وٲلۍ بچہ مارچس مز, تم ہکان یم اپور ترت, تم روزن اسی یپار اپر روزن اپاری. انکمپلیٹ تھومت ات گئی مطلب پتم 8-10 ؤری گئی پکان. اک ؤری بناوان اکھ ٹھوٹ, بیٚیہِ ؤری بیاکھ ٹھوٹ, تو یہ روٗد اکہِ سایڈٕ چھُ سلیب گوٚمُت, بیٚکہِ سایڈٕ چھُ سلیب کم. تو مگر سلیبُک چھُ اتھ مطلب ترنٕچ گُنجٲیش چھنہٕ اتھ کینٛہہ, امہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تٔرِتھ. ڈوڈا بس اسٹینڈ کی حالت ناگفتہ ہو چکی ہے. لوگ میونسپل کمیٹی ڈوڈا کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں.
उनका कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी इस बस स्टैंड की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है। इस वजह से आम लोगों और ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड से कई लोगों का रोजगार जुड़ा है, तहम मुताल्लिकीन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश की सूरत में स्टैंड पानी से भर जाता है और लोगों ने मुताल्लिकीन से मुतालबा किया कि फौरी तौर इस बस स्टैंड की तजदीद और मरम्मत की जाए। मुसाफिर हजरात आते हैं गाड़ियों को चढ़ने के लिए, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपने खुद देखा कि कितने कितने बड़े खड्डे हैं और इस बस स्टैंड की तरफ से जो म्यूनसिपल कमेटी डोडा को आमदन होती है तो वो कहाँ जाती है उसका कोई पता नहीं चलता है। जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पे तो पूरी जेल बनती है, लोगों को चलने में बहुत परेशानी आती है। यहाँ पे तो क्रॉसिंग पॉइंट भी नहीं रहता है, गाड़ियाँ जब चलती हैं लोग साइड से चलने में मजबूर हो जाते हैं। हमारी यही डिमांड है, कम से कम अगर पूरे बस स्टैंड को रुकनी पड़ती है कम से कम ये खड्डे तो भर जाएँ जिससे लोगों को चलने में दिक्कत ना हो जाए। लोग काफ़ी सफ़र होते हैं। लेह में बुद्धिस्टों के मुक़द्दस महीने टेंगपो के आगाज पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। शदीद ठंड के बावजूद कई अकीदतमंदों ने मजहबी रसूम अदा किए, जहां पर पारा -13 डिग्री के पार चला गया है। इस मौके पर अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर लॉर्ड गौतम बुद्धा के तरीके पर चलने की तलकीन की गई। ऐसा जब पूजा करते हैं ये इसमें गुनाह नहीं करना होता है, यही एक महीना तक ना ये मीट खाना होता है ना प्याज खाना होते है। खाना भी बिल्कुल हल्का खाना लाइट खाना खाना पड़ता है सर, ज़्यादा पेट भर खाना भी नहीं खाना होता है सर। और पूजा ज़्यादा फोकस पूजा पे करता है सर, जितना हो सके पूजा इसमें ज़्यादा करना होता है सर। कंजर के तहसील कारहाबा में 12 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से 2 मंजिला अस्पताल तामीर किया गया था। लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अस्पताल को न मुकम्मल किया गया, न ही काम काज के लिए चालू किया गया। इसे या तो हुकूमत की अदम तवज्जुही कहें या तो सियासत। कारहाबा में अस्पताल की इस इमारत की तामीर में कई करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अस्पताल की इमारत खुद अपनी हालत जार बयान कर रही है। जिला पुलवामा के तरचल इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से तबाह हुए पुल से जिला पुलवामा के कई देहात का सड़क राब्ता मुनक़ता है। यह पुल पुलवामा लेतर शहरा पर गुज़श्ता साल बारूदी सुरंग के धमाके में तबाह हुआ था। महकमे R&B ने पुल की तामीर का काम तो शुरू किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर पुल का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। तराल के गफकराल इलाके में मौजूद तारीखी गारें इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हो गई हैं। लोगों के मुताबिक ये गार पूरे मुल्क में मशहूर हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये गारें अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोझ हो रही हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे इन गारों की देखभाल महकमे आसार कदीमा को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक इन्होंने इनकी मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। लोगों ने कहा कि अगर इस हवाले से जल्द कोई इकदाम नहीं उठाया तो इन गारों का जिक्र सिर्फ किताबों में दर्ज रहेगा। बडगाम जिले में पीएम किसान स्कीम के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने स्कीम के तहत मुस्तफीद होने वाले किसानों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। डीसी बडगाम ने कहा कि जिले में 65,000 तौसीक शुदा किसान मरकजी स्कीम से मुस्तफीद होंगे। डीसी ने यकीन दिलाया कि डाटा की खामियों की वजह से महरूम हुए मुस्तहक किसानों को इस्तिफादा कुनंदगान की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। हमने ऑलमोस्ट 70,000 के करीब जो है फॉर्म्स वो हमने रजिस्टर करवाए, फिर उसके बाद उनको हमने कंप्यूटराइज कराया और अपलोड भी करा दिया है। कुछ 1-8% की ऐसे जो जहाँ डुप्लीकेशन आई है या आधार गलत थे या बैंक अकाउंट गलत थे उनकी रीवेरिफिकेशन चल रही है। अदरवाइज आवर जॉब इज़ कंप्लीट। इन फार्मर्स को इनको एनकरेज करने के लिए और इनको और प्रोत्साहित करने के लिए हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर। उधर बारामूला में भी पीएम किसान स्कीम के लॉन्च पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। डीसी बारामूला डॉक्टर जियानीतू ने कहा कि इस स्कीम से न सिर्फ कमजोर किसानों को माली मदद हासिल होगी बल्कि वो मजीद जुस्तजू के साथ अपना काम अंजाम देंगे। बाद में डीसी ने एक मीटिंग मुनक्कद करते हुए महकमे रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में पीएम किसान योजना का इफ्तिताह किया। उधमपुर में डीसी दफ्तर में इस ज़िमन में खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इस दौरान गोरखपुर में मुनक्किद प्रोग्राम की रास्त नशरियात का भी एहतमाम किया गया था। उधमपुर में पीएम किसान स्कीम से 57,734 किसान मुस्तफीद होंगे।
डोडा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सब्जेक्ट मीटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर खालिद सरवाल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। बड़ी तादाद में किसानों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। स्कीम के बारे में जानकारी भी दी गई। सांबा में महकमा ज़राअत की जानिब से एक रोज़ा किसान मेला मुनक्किद किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान मेला मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में किसानों को ज़राअत से जुड़ी नई स्कीमों और तकनीकों के बारे में जानकारी फराहम की गई। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने नए डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा किसान मेला मुनक्किद किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान मेला मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में किसानों की खासी तादाद ने शिरकत की। किसानों को ज़राअत से जुड़ी नई तकनीक और स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। मीटिंग हॉल डोडा में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। डीसी डोडा डीएस दत्तात्रेय और एसएसपी शब्बीर अहमद मलिक ने अवामी मसाइल की समाअत की और जिला अहदेदारों को मसाइल को हल करने की हिदायत दी। लोगों ने बुनियादी मसाइल हल करने के साथ जिले में सेहत को भी फरोग देने पर जोर दिया। तराल के अमलर में तिब्बी सहूलियात मैसर न होने के सबब लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। चंद साल कबल तिब्बी सेंटर पर एक दरख्त गिरने की वजह से इमारत को शदीद नुकसान हुआ था। इस इमारत की मरम्मत नहीं की गई है। लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इन्होंने महकमे सेहत से मसले को जल्द हल करने की अपील की है। अवंतीपुरा के चरसू में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से लोग परेशान हैं। चरसू इलाके की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल की शिकार है। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया। लोगों ने इंतजामिया से सड़क की तजदीद मरम्मत करने की अपील की। तराल के गफकराल इलाके में राब्ता सड़क न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में महकमे दही तरक्यात ने कई दहाई कबल एक सड़क तामीर की थी जो अब खस्ता हो चुकी है। उन्होंने महकमे दही तरक्यात से इलाके में नरेगाम के तहत सड़क तामीर करने की अपील की है। जोसेठ नारावल में राब्ता सड़क 15 सालों से खस्ता हाली की शिकार है। लोगों का कहना है कि 15 साल पहले महकमे ने सड़क पर मैकडम बिछाने की बात कही थी और मशीनें भी जोसेठ पहुंचाई गई, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर रातों रात मशीनों को वापस लिया गया। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इलाके की इस राब्ता सड़क की मरम्मत की जाए। सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए बनाए गए बंकरों की हालत बद से बदतर हो गई है। अरनिया तहसील के काकोदी कोठी गांव में बने इस बंकर में बारिश से 2-2 फुट पानी भर चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर इन दिनों सरहद पर हालात कशीदा होते हैं तो फिर इन बंकरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लोग अपनी सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। वादी कश्मीर में इन दिनों लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है। मुख्तलिफ अफवाहों से लोग काफी तजब्जुब के शिकार हो गए हैं। दूसरी जानब सैकड़ों नौजवान मुल्क के कई रियासतों से वापस कश्मीर लौट आए हैं। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Kashilyan go mutpujwanuk kat. Kashilyan go mutpujwanuk kat. Halat tit gay saw prat prat. Halat tit gay saw prat prat. Kashilyan go mutpujwanuk kat. सास बज फूजी कलिक तायनात। सास बज फूजी कलिक तायनात। कच मगर कशीद हालात। कच मगर कशीद हालात। अंदर अंदर ये सारे नई नाट। अंदरी ये सारी नई नाट। हालत टिट गई साव फ्रट फ्रट। कशियन गोमुत पुजवानुक काट। अफवाह सरी कर परेशान। अफवाह सरी कर परेशान। Taksari tawang kerit saman. Taksari tawang kerit saman.
سارنٕے لٔجمٕژ زَن چھِ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ سارنٕے لٔجمٕژ زَن چھِ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ حالت تِتھِ گٔے ژاو پھرٛٹہٕ پھرٛٹھ کٲشِرٮ۪ن گوٚمُت پُجوانُک کٹھ گرٕ آیہِ واپس کۭتۍ نوجوان گرٕ آیہِ واپس کۭتۍ نوجوان نیبرٕ کٔرۍ شرپسندو پریشان نیبرٕ کٔرۍ شرپسندو پریشان پھرکہٕ ؤرِیتٕچ آیہِ نیبرٕ بیٚیہِ ژھٹھ پھرکہٕ ؤرِیتٕچ آیہِ نیبرٕ بیٚیہِ ژھٹھ حالت تِتھِ گٔے ژاو پھرٛٹہٕ پھرٛٹھ حالت تِتھِ گٔے ژاو پھرٛٹہٕ پھرٛٹھ کٲشِرٮ۪ن گوٚمُت پُجوانُک کٹھ کٲشِرٮ۪ن گوٚمُت پُجوانُک کٹھ حالت تِتھِ گٔے ژاو پھرٛٹہٕ پھرٛٹھ